Hello aspirants, welcome you all once again to our Mind Your Hotel Management channel. So today we are going to see IHM Mumbai scholarship, right? If you will be able to get admission in IHM Mumbai, or if you are planning to go for IHM Mumbai, then there are lots of questions coming from the student that okay sir, can we apply for the scholarship? हमें scholarship वगैरह मिल सकती है क्या? Because IHM की फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी IHMs में कम होती है, बट बहुत सारे IHMs में जो फीस है वो कोई स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाता है. सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप. सो ऐसे कौन से स्कॉलरशिप है जो आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होंगे जो आपको अभी से अगर आप तैयार करके रखोगे तो शायद बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू अप्लाई व्हाट काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. सो जो वीडियो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो या फिर कौन से बहुत सारे ऐसे 2 से 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके रख सकते हो ताकि आपको पता रहे, क्योंकि उनके जो एप्लीकेशंस है वो आपको अपडेट देखते रहने होते हैं ऑन वीकली बेसिस या फिर मंथली बेसिस पे, ताकि जैसे उनका कोई नोटिफिकेशन आउट हो तो आपको तुरंत अप्लाई करना है. नहीं तो फिर अगर उनका डेट अगर निकल गया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है. सो अब हम वन बाय वन करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से स्कॉलरशिप IHM मुंबई में आप ले सकते हो. बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NCHM CET, ECHAT, IHM Aurangabad or any other entrance examination for 2023 and 2024 batch, then guys we have launched our new batches for live and classroom. In live lectures, you will also get shortcut tricks, doubt class, recorded video lectures, topic test, mock test. WhatsApp group you will be added in a WhatsApp group. 10,000 plus questions will be solved. Mentorship is also there. So if you are planning for entrance examination, kindly call on this number 8828581455 for live class. Or if you are nearby to any centers, Dadar, Borivali or Vasai, then you can surely visit any of these centers. You can call on these numbers and you can visit the centers. Also visit our website www.manuredu.com. Okay, so first of all we are going to see types of scholarship which is available in IHM Mumbai, right? There are different types of scholarship which you can see here. Free coaching for SC and OBC student. So guys, if you are from SC or OBC category, then you have a free coaching available in IHM Mumbai. For that you need to apply. That we are going to see. So guys, here you can see this is a notification which was there on IHM Mumbai website, so which you can go through it. So for here you can see that all institute employed under top class education scheme for SC student. So this is called a top class education scheme for SC student. So this is a last year notification, but the similar notification will be out once your counseling rounds will start, or once you get the admission in IHM Mumbai, then definitely there are multiple scholarship scheme which will be there available. So you can go through the same website and check out these kind of schemes which is available for SC and OBC student. So what it is a free coaching scheme for SC and OBC student mode 2. Now what is the website? So here you can see the website is coaching.dosje.government.in. So आपको इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वहाँ पे आपको अपलोड करने हैं. जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वहाँ पे आप देख सकते हो. SC and OBC स्टूडेंट विथ फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम, राइट. सो आपको जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको अभी से बना के रखना है ताकि आपको एंड टाइम पे फिर वैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. जो आपको वेबसाइट है वो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे coaching.dosje.government.in. सो ये वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है. ये आपके जो स्कॉलरशिप स्कीम है, जब आपका HM में एडमिशन हो जाता है तब स्टार्ट होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके काउंसलिंग राउंड के टाइम पे. तो आपको इसको अपडेट देखते रहना है किस तरीके से, अगर वहाँ पे अपडेट आया है, चालू हुए हैं, सर इमीडिएटली आपको वहाँ पे रजिस्टर कर देना है. सो ये इन कोचिंग्स के लिए है, UPSC, SSC, JEE, NEET, CAT, CLAT, राइट. ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए ये वेबसाइट पे यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर करते हैं. सो अपना आपका जो NCHM CET JEE है वहाँ से अगर आप देते हो सो उसके लिए आप एलिजिबल हो. सो गाइस, जो ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जैसे कि आपका 10th और आपका जो 12th है उसमें आपका 50% से अबोव होना चाहिए. ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप.
सो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3500 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं. And if you have a family income less than 3 to 4 lakhs and if you are from SC and OBC category, then for day to day expenses you might also get a stipend of 4000 per month if you got selected for this particular scholarship. So इतने सारे benefits आपको मिलते हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो स्कॉलरशिप के लिए. सो डेफिनेटली आपको अप्लाई ज़रूर करना है. सो अप्लाई करने के लिए जब आपका एडमिशन हो जाता है HM मुंबई से, उस टाइम पे आपको जो हम सारे रिसिप्ट्स एंड जो भी आपको मिलते हैं एंड NCHM CT का जो एग्जामिनेशन का हॉल टिकट है वो भी आपको हैंडी रखना है. वो टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करते टाइम आपको भरने होंगे. अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो इन फ्यूचर, सो डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू आ रहा है, सो कमेंट सेक्शन में बताइए हमें. हम डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे. नेक्स्ट जो है हमारा, इट इज़ अ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन. जो ये होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, ये लोग भी जो है स्टूडेंट को एंकरेज करने के लिए हु आर गोइंग इनटू होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ स्कॉलरशिप for the students if they won't be able to afford the education. The student who comes from economically weaker sections, those kind of student can apply for these particular scholarship. So we are going to see कि इस particular scholarship में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको required है, क्या eligibility criteria है, that we are going to understand. So guys, जो ये scholarship है, ये scholarship के लिए भी आपको जो आपका admission हो जाता है फर्स्ट ईयर में, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए admission आपका finalize हो जाता है, उस टाइम पे you can apply. और इसके लिए जो आपका स्कॉलरशिप सेल है IHM मुंबई में, सो आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. ये जो नोटिफिकेशन है, द नोटिफिकेशन भी इन्होंने IHM मुंबई ने ही डाला हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो उनका स्टैम्प है. स्टूडेंट स्टडिंग इन BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप. ठीक है. ड्यूली फिल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट नीड टू सेंड. ये यहाँ पे देखिए इन्होंने एक जीमेल आईडी दी है. जब आप अप्लाई कर रहे हो, सो इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना है. सो ये जो नोटिफिकेशन है, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है. सो जब इस साल का आपका काउंसलिंग राउंड आएगा, वो टाइम पे जो न्यू डेट्स आएंगे, उस डेट के पहले आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उस डेट के पहले आपको इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी पे आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना. आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको इनको सेंड करने हैं. डॉक्यूमेंट भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, इनकम प्रूफ, प्रीवियस ईयर्स मार्कशीट एंड JEE अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है. द फाइनल सिलेक्शन टुवर्ड्स ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप वुड बी बाय होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन. तो एसोसिएशन के एंड से ही जो फाइनल अलॉटमेंट आएगा वो आपको मिलेगा. इन्होंने जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन बोला है, वो भी इन्होंने जब वो नेक्स्ट अपना नोटिफिकेशन आउट करेंगे, सो उसी के नीचे ही दिया होता है. उसी नोटिफिकेशन में आप लास्ट में देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन इस तरीके का एप्लीकेशन होता है. सो अगर आप फ्रेश है, इस तरीके से ये पूरा आपको फिल करना है. फिल करने के बाद आपको उनको सेंड कर देना है. ठीक है. सो इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, सो आपको जो स्कॉलरशिप है वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती है. सो गाइज, ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फीस में मिलती है. जो आपका ट्यूशन फीस होता है, क्योंकि फीस जब आप भरते हो तो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे आपका डेवलपमेंट फीस एंड अदर फीस. सो उसमें जो आपका ट्यूशन फी होता है, उस ट्यूशन फीस में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है. ठीक है. बट ट्यूशन फीस भी IHM मुंबई का जो है, अगर उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो भी आपको एक बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है इफ़ यू वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड द फीस. नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है गाइज, दिस इज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज. So if you are a student or if you are someone who have a person with the disabilities, then for you also there are multiple kinds of scholarship available. So that also we are going to see. So guys, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, स्टूडेंट है जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, उनके लिए भी है स्कॉलरशिप फॉर, जो थर्ड ऑप्शन पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री और डिप्लोमा इन 214 नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस. नंबर ऑफ स्कॉलरशिप पर ईयर 300 स्कॉलरशिप है यहाँ पे. जो पेरेंटल इनकम है वो बिलो 6 lakhs होना चाहिए. ठीक है. फैमिली इनकम.
मंथली मेंटेनेंस अलाउंस 3000 पर हॉस्टल ईयर, इफ आपने अगर अपना हॉस्टल लिया हुआ है, सो फॉर देम 3000। फॉर डे स्कॉलरशिप 2000 पर मंथ। डिसेबिलिटी अलाउंस बुक ग्रांट ₹5000 पर एनम एंड ट्यूशन फी अप टू 2 lakhs पर एनम। सो इस तरीके से जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, इस तरीके से आपको जो स्कॉलरशिप है वो वहाँ पे आपको मिलती है। जो पर एनम जो ट्यूशन फीस है वो आपके 2 लाख तक का आपको स्कॉलरशिप मिलता है। सो अगर आपका 2 लाख तक अगर आपका 2 लाख तक ट्यूशन फीस जा रहा है तो आपका यहाँ पे वो स्कॉलरशिप में आ जाएगा। उसको अप्लाई करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन करना है www.scholarships.gov.in। यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन हैं डिसेबिलिटीज़ के और उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पे मांगते हैं, वहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं। जो ये वेबसाइट की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जैसे आपको चेक करते रहना है कब स्टार्ट होगी। जैसे ही स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको फिल कर देना है। सो ये जो वेबसाइट है इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। थर्ड जो हमारा स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप नोटिस। ये भी IHM मुंबई के एंड से ही अवेलेबल है, कंसोलिडेटेड। सो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई कर सकते हो एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए गाइस यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जैसे नेशनल लेवल पे इफ़ यू आर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, देन आपको भी सेम इसी वेबसाइट पे scholarships.gov.in यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे देखिए अंडर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships are offered to students belonging to general, minority, SC, ST, OBC and EWS category by 10 ministry, 12 states, 3 union territory, UGC and AICTE. Student can check their eligibility and apply for the same. So इस वेबसाइट पे आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। सेकेंड जो है, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र पर्टिकुलरली, देन स्टूडेंट्स हु आर एज डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, SBC, VJNT कैटेगरी। सो ऐसे स्टूडेंट है वो इस maha.it.gov.in इस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC, ST कैटेगरी हुज पेरेंटल इनकम इज बिलो 2.5 लाख पर एनम कैन अप्लाई थ्रू maha.dbt पोर्टल। जैसे अभी मैंने बताया maha.dbt maha.it.gov.in फॉर अवेलिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC, ST कैटेगरी हुज पेरेंटल annual income is about 2.5 lakh and student belonging to OBC, SBC, VJNT category there is no approval from the state of Maharashtra for scholarship, ठीक है। अगर आप SC, ST कैटेगरी से हैं, आपकी जो फैमिली इनकम है 2.5 लाख के अबो है, सो उसके लिए अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के लिए भी www.scholarship.up.gov.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे बीच में यूपी आ गया है। सो यूपी के अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट हो सो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। स्टूडेंट हु आर डोमिसाइल ऑफ स्टेट्स अदर देन महाराष्ट्र बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC कैटेगरी नीड टू अप्रोच डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस समाज कल्याण विभाग टू देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड इंक्वायर फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। सो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे समाज कल्याण विभाग होता है, वहाँ पे आप जाके अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा गाइज ये 2 वेबसाइट है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर टारगेट कर रहे हो फर्दर स्टडीज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th और MBA के लिए कोई भी इस तरीके से कर रहे हो। सो ये 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको सेव करके रखना है। सो अगर आप NCHM CT के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है buddyforstudy.com एंड देन vidyasarathi.co.in। सो ये वेबसाइट को भी आप गो थ्रू कर लीजिए, सेव करके रख लीजिए, ताकि आप इनका भी जब NCHM CT के इनके स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप उसमें अप्लाई कर सको। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिली हुई है दोनों ही वेबसाइट से। सो आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये दोनों वेबसाइट से जो एफिलिएट है IHM मुंबई के एंड से, ठीक है। सो चेकआउट दीज एज वेल, www.buddyforstudy.com एंड www.vidyasarathi.co.in। एंड जो हमारा लास्ट स्कॉलरशिप है इट इज फॉर ओनली SC स्टूडेंट। सो इफ यू आर ओनली SC स्टूडेंट, सो फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो फॉर IHM मुंबई। सो वो हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है। इफ यू आर पर्टिकुलरली फ्रॉम SC कैटेगरी एंड
इफ़ यू आर परसुइंग फॉर फर्दर स्टडीज़ इन होटल मैनेजमेंट, देन आपके लिए जो scholarships.gov.in यहाँ पे एक पर्टिकुलरली अलग से कोटा होता है. सो ऐसे स्टूडेंट whose family income should not exceed 8 lakh per annum, benefits are available only for 2 siblings in a family. सो एक फैमिली में अगर आप भाई हो तो आप दोनों को ही उस सेम अगर अप्लाई कर सकते हो फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए. ठीक है. सो ये वेबसाइट है. सो मोस्ट ऑफ द जो स्कॉलरशिप जैसे हमने देखा, तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स के लिए आपको जो रजिस्टर करना है वो इसी वेबसाइट से करना है, scholarships.gov.in. सो जब आप रजिस्टर करते हो तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस वहाँ पे आते हैं. फॉर एग्जांपल आपने NCHMCT के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे देंगे, या फिर IHM मुंबई में है तो IHM मुंबई का एफिलिएट है. ये जो आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, दीज डॉक्यूमेंट्स हैज बीन अपलोडेड बाय IHM मुंबई वेबसाइट. ठीक है. सो वो अफिलिएटेड है. सो अगर ऐसे स्टूडेंट अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्टली मिल जाती है, और एल्स DBT फॉर्मेट में आपको वो जो है आपके बैंक अकाउंट में आपको जो पैसे मिल जाते हैं वंस यू गेट एडमिशन इनटू IHM मुंबई. ओके. सो अभी तक जिस तरीके से जो आपने स्कॉलरशिप्स के सारे ऑप्शंस देखे, सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता चली होगी. सो डेफिनेटली आपको इस सारी चीज़ों को सेव करके रखना है. और ऐसे स्टूडेंट जो अगर कर रहे हैं प्रिपरेशंस, अगर आप जानते हो किसी स्टूडेंट्स को, सो आप ऐसे स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हो. सो इवन दे कैन गो फॉर दिस, सो इवन दे कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और वो अच्छे से पढ़ाई करें, और तो उनको ऐसा कोई टेंशन ना लेना पड़े कि अच्छा अगर वो प्रिपरेशंस करते हैं, अगर एडमिशन के लिए कट ऑफ अच्छा आ भी जाता है तो बट अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस, देन डेफिनेटली उनका मोरल डाउन हो जाता है. सो ऐसी सिचुएशन में ये जो स्कॉलरशिप्स है वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. तो डेफिनेटली आप सबको शेयर कर सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं एंड उनको ये सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए. अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है. जैसे अगर आपने अभी जैसे हमने कुछ चेक एलिजिबिलिटीज़ वगैरह चेक करे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट चेक करे, तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक करनी है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप और नॉट. राइट. अगर आप एलिजिबल हो देन डेफिनेटली आप फिल कर लीजिए. अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली वो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा. जैसे अब आपने देख लिया है कि ओके ये डॉक्यूमेंट जो है आपको रिक्वायर्ड है, तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास प्रिपेयर है देन इट इज़ वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए, ताकि जब ये रजिस्टर करने का टाइम आए वो टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े. क्योंकि जब आपका काउंसलिंग राउंड होता है उस टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए स्टार्ट करते हो देन बहुत सारा टाइम लगता है, एंड देन फिर आप उस स्कॉलरशिप के लिए अवेल नहीं कर सकते. आपको जो अपडेट्स हैं, जैसे हम ही अपने सारे जितने भी वेबसाइट्स डिस्कस करें, वो सारे वेबसाइट्स पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट चेक करते रहना है. जैसे फॉर एग्जांपल मंथली ट्वाइस और थ्राइस आपको चेक करना है, 2 से 3 बार हर महीने में, ताकि आप ऐसा मिस ना करो. जैसे आपने 10 तारीख को चेक कर लिया, देन 15 से 20 तारीख को, एंड देन 25 से 30 को. तो अगर कोई आया है तो आपको पता रहे वो. और ऐसे सारे वेबसाइट्स पे आप रजिस्टर करके रखो. ठीक है. तो अगर उनके एंड से कोई आए अपडेट तो वो आपको मेल आ जाएगा. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं, जो बहुत कॉमन है, और सारे ही आपको जो अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप के लिए सबके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते ही है. मार्कशीट ऑफ 10th और 12th लास्ट एग्जामिनेशन पासिंग जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है गाइज, वो आपको थोड़ा सा पहले से देखना है. अगर आपका खो गया है तो पहले से उसको वापस अप्लाई कर लीजिए बोर्ड में. अगर है आपके पास देन इट इज़ वेरी गुड. फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आप बना के रखिए. अगर आप 2023 के लिए कर रहे हैं तो अभी बना लीजिए. अगर 2024 के लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 6 महीने या फिर 7 महीने पहले उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिए. कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC OBC ऐसे पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, सो कास्ट सर्टिफिकेट डेफिनेटली मस्ट है. सो आपको अभी बना के रखिए. ट्रांसफर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बना के ही रखिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो ऑलमोस्ट होता है सबके पास. डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपके पेरेंट्स और गाइडेंस के एंड से होता है. प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, बट नहीं है तो उसको भी बना के रखिए. फी रिसीप्ट ऑफ द करेंट ईयर. सो आप जब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो पोस्ट एडमिशन, सो वहाँ पे आपको फी रिसीप्ट बहुत ज़रूरी है. सो जो भी आप फीस पे करते हो कहीं पे भी, तो रिसिप्ट जो है उसको संभाल के रखिए.
ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने वीडियो को एंड तक देखा। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेन्यू और होटल मैनेजमेंट चैनल, जहाँ पे आपको जो होटल मैनेजमेंट स्पेसिफिक आपको वीडियोस आपको मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एग्जाम अपडेट्स एक्सेट्रा। सो आप जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखिए, तो जब भी कोई नया अपडेट आएगा इन टर्म्स ऑफ होटल मैनेजमेंट हम जरूर अपडेट करेंगे। और जो एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। सो वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, और जो फॉर्म है आप अच्छी तरीके से अभी से भर लीजिए। एंड गाइज, अगर आप होटल मैनेजमेंट NCHM-CD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको और कोई गाइडेंस चाहिए, आपको और कोई डाउट्स हैं, काउंसलिंग की जरूरत है, अगर आपको हमारे बैच में एडमिशन लेना है, सो फॉर ऑल दोस काइंड ऑफ इंक्वायरी 8828581455 इस नंबर पे तुरंत कॉल कर सकते हो आप। अगर आप मुंबई में हो और हमारे सेंटर्स विजिट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो विथ योर पेरेंट्स, उसके लिए इस नंबर पे आप डायल कर सकते हो। सो हमारे वेबसाइट पे आप गो थ्रू करो, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रेटेजी, यू कैन चेक आउट ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक मैनुअल एजुकेशन के साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।